कौन है जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा, हु इज ही। मेरे साथ प्रॉब्लम पे जाने के लिए आपको 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। है आप में अभी कभी डीएम करो। आई स्वेयर God's honest truth, सना सुल्तान is single। एक ईमेल आया था मुझे शादी के प्रपोजल का, और एक आया था डीएम ऐसा कि सना सुल्तान अगर आप मेरे प्रपोजल को हाँ नहीं बोलोगी तो मैं लड्डू में जहर खा के मर जाऊंगा। प्लीज इसमें तवज्जो दीजिएगा। क्लोज। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, वाइब मेरे साथ मैच होनी चाहिए, बाकी कुछ कुंडली मैच करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, वाइब मैच होनी चाहिए, अच्छे इंसान हो, इज्जत दो, प्यार से ज्यादा जरूरी इज्जत है। मुझे वो रिश्ते भी बिखरते हुए देखे जहाँ मोहब्बत बहुत ज्यादा है बट इज्जत ना होने की वजह से पीपल हैव जस्ट पार्ट इन देयर वेज, यू नो। So someone who respects women, that's the most important criteria. I belong to a Muslim family. Okay, मेरे जो relatives है, they were not very keen on what I was doing. like क्या है ये, कब तक चलेगा, कितना Hello one and all. Guess what? Today we have Sana Sultan with us. She is a national award winner with 5.5 Instagram followers. She is an actor, a model, as well as a social media influencer. Hello Sana. Hi. How are you? बहुत आला, बहुत प्यारी। आप कैसे? आप हो ही प्यारे। You're looking very pretty in this gorgeous red dress. बहुत सूट कर रहा है आपको। शुक्रिया, thank you. This is an era of influencers, actors, and all the creative people. And you are like all in one right now. So we'd like to ask, how did you begin this journey? आपकी journey start कैसे हुई exactly? So मेरा शुरुआत ही हुआ था when I was featured on New York's Times Square billboard. Yeah, that's how it started. There was this huge beauty pageant which was organized by UC Browser, and then there were lakhs of girls who participated, and mashallah ended up winning that. So I was featured on New York's Times Square billboard. I got bomb amount of money, and then I got my blue tick. I started my social media journey. TikTok पे millions of followers थे, Instagram पे हुए, तो वहाँ से शुरुआत हुई as a content creator. फिर उसके बाद में मुझे म्यूजिक वीडियोस के ऑफर आने लगे धीरे धीरे वहाँ से, and then it went on with that. You have done some 30 music videos in 1 year. Yeah, so the record for that अभी तो I think कुछ 40 कर लिए होंगे, लेकिन पिछले साल 30 मुकम्मल कर लिए। इस साल you did 40. पिछले साल और ये साल का आधा मिला के 40 music videos in 1.5 years. I have no words after this. I really have no words. Like 30 music videos एक साल में करना। Thank you so much. I think ये दुआएं अम्मी अब्बू की, और yeah, I think I'm glad that I'm blessed with such amazing people around me जिनको मुझे वो caliber दिखता है कि you know मैं माशाल्लाह इतने सारे music videos करूँ, so it's a great feeling. Plus your fans, like आपकी जो fans हैं, I'm pretty sure they pray for you. Like बिल्कुल, I think उसके बगैर तो मैं अधूरी हूँ। एक आप फर्ज करो ना, I have people around me but they're not supporting me. I'll never be able to go ahead in life. I always need that pump up, and the motivation come directly from my fans, my followers, who are always like अब सना का क्या, अब सना का क्या। So that keeps me also on toes कि अब इतनी responsibility है, इतना pressure है, अब थोड़ा सा और life में आगे बढ़ के इनको दिखाना है। right. Speaking about your fans, Instagram is playing a vital role in today's era. 100%. Not only Instagram, सारे social media. बिल्कुल बिल्कुल। So how do you keep your activity or the post on Instagram such that your followers be engaged with it? One thing about my content, अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा है, I don't stick to one particular content. Normally content creators का ये होता है कि या तो वो डांस करेंगे तो वो डांस पे तवज्जो देंगे, या वो कॉमेडी करेंगे तो कॉमेडी, उनका एक पर्टिकुलर जॉनर होता है। अब मेरा ये कि मेरा कोई जॉनर नहीं है, मैं कुछ भी कर लेती हूँ, मैं कॉमेडी कर लूँगी, अम्मी के साथ वीडियो बना लूँगी, खुद के सोलो डांस वीडियोस बनाऊंगी। अब मेरे म्यूजिक वीडियोस माशाल्लाह मुसलसल रिलीज होते हैं, कंटिन्यूस रिलीज होता है, तो बैक टू बैक मेरा वो पोस्ट करता है। सो एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं ये चीज़ फॉलो करूँगी, ये एल्गोरिदम फॉलो करूँगी। नो, आई एम अ वेरी स्पॉन्टेनियस पर्सन। आई मेक श्योर कि मैंने प्रोफेशनल लाइफ में दिखाऊँ लोगों को, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में दिखाऊँ। और एक बहुत गौर करने वाली चीज़ है, जब लोग आपको पर्सनली जानना चाहे ना, ट्रस्ट मी दैट्स व्हाई यू आर डूइंग गुड। राइट, प्रोफेशनल तो ठीक है, मैं मेरा काम दिखा रहे, बट पीपल वांट टू सी यार आपकी अम्मी के साथ वीडियो नहीं डाले बहुत दिन से, वो डालो, तो इट शोज दैट दे वांट टू गेट कनेक्टेड टू यू। सो आई मेक श्योर कि मैं बैलेंस रखूं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। मेरा इंस्टाग्राम फीड वैसे ही दिखे जैसे सना सुल्तान है। समटाइम्स व्हेन आई फील सैड मैं वो भी डाल देती हूँ। हमेशा जो लोगों को दिखता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हम दिखाते हैं, नोबडी इज पोस्टिंग देयर फेलियर्स, ऑल ऑफ अस आर पोस्टिंग आवर अवार्ड्स जो हम जीत कर आए, विंस। एंड आई थिंक जब हम फेलियर नहीं दिखाते तो थोड़ा सा अनफेयर होता है। अगर हमें सैड फील हो रहा है तो बताओ लोगों को कि आप भी उनकी तरह हो, आपको
साइड फील हो सकता है, सो आई मेक श्योर कि मैं वो भी अपने कंटेंट में शामिल करूँ. Like you already mentioned, you try to maintain a balance आपकी रियल लाइफ में और रियल लाइफ 100%. सो दोनों में डिफरेंस क्या है? रियल लाइफ सना खान कैसी है और रियल लाइफ सना खान कैसी है? रियल लाइफ सना सुल्तान जैसे कि है, शी इज अ वेरी happy go lucky, sort of a girl. She's ambitious. She's a girl, a small girl, but with big dreams. बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में. गोल है एक खत्म तो दूसरा, दूसरा खत्म तो तीसरा. खुद का ही बेंचमार्क बना के खुद को ही कंपटीशन में रख के आगे जाना, ये है सना सुल्तान. एट द सेम टाइम वेरी फैमिली ओरिएंटेड. मतलब मेरे गिनती के 3 या 4 दोस्त हैं जिनको मैं अपनी उंगलियों पे गिन सकती हूँ. और अभी तो मेरे दिल के दरवाजे दोस्तों के लिए बंद है. ये जो मेरे पुराने दोस्त हैं, 15 साल पुराने, 20 साल पुराने, 55 वाले, तो ये वो मेरे दोस्त है. तो वो है सना सुल्तान रियल वाली. नाउ कमिंग टू रियल वाली सना सुल्तान, ऑब्वियसली मैं इतने म्यूजिक वीडियोस करती हूँ, मैं अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ. जैसे किसी में मैं कश्मीरी लुक में, मेरा एक कश्मीर वाला सॉन्ग रिलीज हुआ है, पंजाबी बहुत हिट जा रहा है. अभी एक सिम्बा के साथ मेरा जो सॉन्ग रिलीज हुआ 2-3 दिन पहले, उसके अंदर आई एम प्लेइंग अ वेरी हॉट गर्ल. एक के अंदर प्लेइंग गर्ल नेक्स्ट डोर. सो रील डिपेंड्स ऑन मुझे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स क्या रोल दे रहे हैं, रील उस पर डिपेंड करता है. बट रियल सना सुल्तान इज वेरी कैंडिड. She's very she doesn't have filter. She's very bubbly and no filter. मतलब एक मेरी चीजें पता है, अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ ना, मैं ये बोलने में शर्माऊंगी कि आई एम नॉट फीलिंग गुड. आई विल टेल टू माय पीपल, यार आज मूड ऑफ लग रहा है गाइस, आज मजा नहीं आ रहा. आप फेक नहीं कर दे. मैं कर ही नहीं सकती. मेरी शक्ल बता देती है. मैं चाह कर भी नहीं कर सकती. वो खुदा ने मुझे टैलेंट नहीं दिया है. जबकि बीइंग एन एक्टर वो आपको आपके अंदर होना चाहिए कि आपको सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए. बट यही तो ब्यूटी है, जब कैमरा मेरे सामने नहीं है तो आई एम वेरी कैंडिड. राइट. ये सब सुन के we got to know that सना खान is a very bubbly girl, choppy girl in real life, but फिर भी उसको पता है कि real life में she needs to not keep herself to only the choppy bubbly girl and अपने character के हिसाब से अडैप्ट करना चाहिए. बिल्कुल. And you already mentioned कि you are doing a video with Simba. Yeah, already that got released. Yeah, and so there would be many more people you have done music videos. Lots. So amongst them, who was your favorite? Oh, that's a very nice question. First, I'll always give to the one I did debut with. So he's Sherry Mansa. He's legend of Punjab industry. सब उनको जानते होंगे जिनका वो सॉन्ग है पिल्ला के 3 रुपए कपलिए. So he's legendary of Punjab industry. मेरी शुरुआत ही, मेरा पहला म्यूजिक वीडियो ही उनके साथ था. वहाँ से मैंने शुरुआत की थी ना. went on जो मुझे पसंद है, ऐसे तो मैंने बहुत सारे किए. बी प्राक सर का सॉन्ग किया, जानी बी प्राक का, रूहे दारिया, फिर अल्तमश फरीदी वाला रूहेदारी, उनके साथ काम करने में मजा आया. करण मेहरा, अभी हाल ही में मैंने शिविन के साथ काम किया, शिविन नारंग, उनके साथ भी एकदम इंस्टेंट कनेक्टिविटी थी. सिम्बा तो मेरे दोस्त थे, उनके साथ मजा आया. राहत फतेह अली खान साहब का गाना किया, वो तो लेजेंडरी है. उनकी आवाज में मैंने म्यूजिक वीडियो किया जो रिलीज हुआ. तो सबके साथ काम करके बहुत बहुत ज्यादा मजा आया. तो मैं एक चूज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट स्टिल आई गिव इट टू शेरी मान सर, क्योंकि वो मेरा पहला वीडियो था. उन्होंने मेरा बहुत एतमाद बढ़ाया. सिर्फ एक सेंटेंस कभी कभी आपको इतना मोटिवेट कर सकता है. उन्होंने मेरा पहला शॉट देखा, आई स्टिल रिमेम्बर मॉनिटर देख के, एक कुड़ी ने आगे जाना है लाइफ में. कमिंग दैट फ्रॉम शेरी मान सर, दैट मींस अ लॉट. तो वो एक सेंटेंस की लड़की लाइफ में बहुत आगे जाएगी, तुझमें वो कैलिबर है. वो चीज मैंने बिठा ली अपने दिमाग में, एंड आई वाज लाइक बस अब सर ने बोला तो करना है. उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, जस्ट गोइंग. Alhamdulillah. So, Adamu plans to do projects with him in the future. Yes. So right now in Canada we were planning a music video very soon. But अभी हाल ही में उनसे मुलाकात हुई थी मेरी दुबई में, जब मैं परफॉर्म करने गई थी. तो उनका भी परफॉर्मेंस सेम स्टेज पर था, मेरा भी परफॉर्मेंस सेम स्टेज पर था. तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई, एंड आई वाज लाइक सर आई एम सो हैप्पी कि सेम स्टेज पर हम फिर से साथ में परफॉर्म कर रहे हैं. तो मेरा डांस परफॉर्मेंस था और उनका सिंगिंग परफॉर्मेंस था. तो फिर वहाँ पर लाइक अब हम जल्दी फिर से गाना करेंगे. आई एम वेटिंग फॉर इट. सो या Obviously, अभी आपने अच्छे करियर खोल लिया, बुरे भी होंगे. Like of course being like a girl, there would be like times you would feel start uncomfortable. अच्छा हाँ, uncomfortable या फिर किसी और ने जानबूझ के uncomfortable feel करवाया. Oh God, yeah, हाँ, सही. So were there any instances? Yeah, this was back in like 3 years before I won New York Times Square जो मैंने जीता था. उसके पहले की जस्ट बात है. I was very new. I'm a BMM student, bachelor's in mass media. So I was studying, and one director called me. मॉल में मुलाकात हुई, Starbucks में. He was sitting and he's like
ओके सो आई हैव अ म्यूजिक वीडियो, यू लुक वेरी प्रिटी एंड ऑल, सो यही आपके सीन्स है, थोड़ा सा बोल्ड है, बिकनी है और बैकलेस है, ये वो 3-4 चीज़ें उन्होंने बोली। तो मैंने बहुत हम्बली बोला कि सर आई बी मोर देन हैप्पी टू वर्क विथ यू, बट सिंस मेरा स्टार्ट है एंड आई एम नॉट वेरी वेरी कीन ऑन बोल्ड सीन्स, एटलीस्ट नॉट इन स्टार्ट, आई एम नॉट कंफर्टेबल, सो मे बी कुछ और होगा तो आप मुझे बताना। तो आइडियली सामने वाले का रिप्लाई ये होना चाहिए कि नो वरीज, विल वर्क टुगेदर सून। ही टोल्ड मी आप एक काम करो, आप शादी करके घर पे बैठ जाओ। And that was such a demotivating sentence because I didn't do anything, मैं बस नई थी, तो मैं सिर्फ मोटिवेशन ढूंढ रही थी और कॉन्ट्री मुझे डिमोटिवेट किया गया ना, वैसे शादी क्यों करूँ, मुझे तो काम करना है। कहती नहीं, अगर आपके इतने सारे मसले मिसाइल है कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी, वैसा नहीं करूँगी, तो फिर तो आप किधर नहीं जाओगी लाइफ में। मैंने कहा इंशाल्लाह सर आप भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, खुदा ने चाहा तो आप देखोगे कि मैं म्यूजिक वीडियोस बहुत सारे करूँगी, और शायद आपने बात मुझे बोली है, मुझसे ज़्यादा मेरे गॉड को बुरी लगी होगी, तो आई मेक श्योर कि मैं अच्छा काम करूँ और आपको बताऊँ बिना वो सारी चीज़ किए। तो टच वुड खुदा ने वो कबूल की, और आज आई थिंक आज से 1 साल पहले उनका मैसेज आया था कि हम साथ में कब काम कर रहे हैं। ओह, so what is your reply to the same? I said sir I'll let you know, my dates are not very free. Oh. Must have said. Alhamdulillah. I would not like to name him, but he's someone who's very renowned, and yeah, Alhamdulillah. I'm so glad. See, I told you sometimes God answers on your behalf. वो टाइम पे मैंने सिर्फ जवाब देकर आ गई, बट असली जवाब काम से देना होता है, मुंह से नहीं। तो खुदा ने वो चीज़ भी मेरे थ्रू कराई, सो आई एम वेरी थैंकफुल। सो हाँ, सो सी मैंने अगेन, उन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया, बट मैंने वो सिचुएशन को भी इतना ज़्यादा पॉजिटिवली लिया कि अब तो इसको मैं करके दिखाऊंगी। Right. एक होता है ये मोटिवेशन कि यार सना यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड, अच्छा लगता है, फिर एक मोटिवेशन वो होता है जब कहते हैं यार तू कर नहीं सकती, उससे नहीं होगा, तब लोगों को करके दिखाने का मजा कुछ और Exactly. होता है। अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ। ये तो मैंने उनको शुक्रिया भी बोला वैसे, सर थैंक यू सो मच। जब उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला हाँ आप तो स्टार बन गई हो, बहुत अच्छा काम करिए, मैंने कहा सर सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, तो शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। Right. You have collabed with hundreds of brands, like obviously इतने सारे अगर followers है तो each and every brand is like please हमारे साथ collab कर लो। So what was one brand जिसका DM was the funniest in your this thing, like ब्रांड का डीएम, फैंस का डीएम मुझे फनी वाला पता है, ब्रांड वाला तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट deliverables कुछ अजीब से। ये अभी का ही बताती हूँ क्योंकि इतना तो मुझे पुराना नहीं याद है स्टार्ट का। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले का डीएम है ये, कोई न्यूट्रिशन वाला ब्रांड था, तो मेरे साथ कोलैब करना था फिटनेस उसका, तो उन्होंने मुझे बोला कि यू वांट टू कोलैबोरेट विद यू, ब्लू टिक है उनका भी। मैंने कहा ओके, मैंने कहा बजट आप बता दें और आपके डिलीवरेबल्स क्या चाहिए वो बता दें। तो उन्होंने कहा कर कि हाँ ठीक है ये डिलीवरेबल्स, मैंने कहा ठीक है बजट क्या, कहते बजट ही आपको पब्लिसिटी दे रहा है, इससे बड़ी चीज़ क्या है। उनके फॉलोअर्स है मुश्किल से 1000, और वो कह रहे कि इंस्टाग्राम पे मुझे पोस्ट पे टैग करेंगे तो उससे मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो मैंने इंसल्ट नहीं किया, मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पब्लिसिटी है, आई वर्क फॉर मनी, आपके पोस्ट का मैं क्या ही करूँगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत फनी लगी कि लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं, आपको पब्लिसिटी देंगे हमारे पेज पे, 1000 का पेज है हमारा। And apart from it, what was the fan का text which मेरे फैन, अच्छा मेरे ना फ्रेंड्स का एक बहुत आला चीज़ है, जब भी उनको एंटरटेन होना होता है तो वो मेरे डीएम्स खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है सना सुल्तान के डीएम्स में तो अलग दर्जे की चीज़ मिलेगी। हाँ। एक फनी डीएम जो मैं अक्सर याद करती हूँ, एक ईमेल आया था मुझे शादी के प्रपोजल का, और एक आया था डीएम ऐसा कि सना सुल्तान अगर आप मेरे प्रपोजल को हाँ नहीं बोलोगी तो मैं लड्डू में जहर खा के मर जाऊंगा। मैंने कहा बंदे को मरना भी है लेकिन लड्डू में जहर, लड्डू में खा के मरना है। पर I was laughing. Are you fine? I'm fine. That's crazy. फिर आपने रिप्लाई दिया? नहीं मैंने रिप्लाई नहीं दिया, फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाला, मैंने कहा मैं अकेले क्यों हंस रहा हूँ, फॉलोअर्स को भी हंसाती तो उसका नाम मैंने बहुत हम्बली हटा के हाइड करके फिर मैंने स्टोरी डाली, सब हंसने लगे कि ऐसे डीएम्स आप ही को आ सकते हैं। मतलब बंदे को मरना है फिर लड्डू में जहर डाल के, मतलब क्या है यार। बहुत एपिक था वो, अभी तक हंसती मैं वो वाले डीएम, ऐसे आते रहते रोज का है। अच्छा हाँ एक था कि और पता नहीं प्रपोजल वाले आते थे, रीजन बीइंग मैं सिंगल ही हूँ और सबको दिखता है कि मैं बॉयफ्रेंड्स के हवाले से कुछ पोस्ट नहीं करती, इसलिए मेरे ज्यादातर डीएम्स उसी बेस पे होते हैं कि हर कोई ट्राई करता है ना। तो The nation actually wants to know is Sana Sultan actually single or देखो मैं how all the fans in our DMs wants to know. अभी इसका आंसर दे दो। I swear God's honest truth, Sana Sultan is single. Okay.
तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं, मैं यहाँ पे बोल दूँ तो मैरिज please, हाँ, मैट्रिमोनी, हाँ, please, हाँ। हाँ ओके प्लीज इसमें तवज्जो दीजिएगा क्लोज। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, वाइब मेरे साथ मैच होनी चाहिए, बाकी कुछ कुंडली मैच करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, वाइब मैच होनी चाहिए। और अगर मुझे मेल टेस्ट, हाँ म्यूजिक टेस्ट, सेंस ऑफ ह्यूमर, देखो वैसे बोलूंगी लोग बोलेंगे अब तो बोल रही थी कोई लिस्ट नहीं, अब लंबी चौड़ी लिस्ट निकली है, लड़कियों का ऐसा ही होता है। नहीं यार, बस कनेक्ट हो जाए वाइब, बाकी चीजें सेकेंडरी है। अच्छे इंसान हो, इज्जत दो, प्यार से ज्यादा जरूरी इज्जत है, कुछ हो ना हो। आई थिंक प्यार ना हो जरूरी है बट इज्जत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने वो रिश्ते भी बिखरते हुए देखे, थोड़ा इंटेंस बात करी बट फैक्ट है, मैंने वो रिश्ते भी बिखरते हुए देखे जहाँ मोहब्बत बहुत ज्यादा है बट इज्जत ना होने की वजह से पीपल हैव जस्ट पार्ट इन देयर वेज, यू नो। So someone who respects women, that's the most important criteria. आप में वो बात तो सना सुल्तान को डीएम करे अभी के अभी। ओके बाय। सना सुल्तान की अम्मी से जाके मिल लीजिए। हाँ यार, अम्मी भी तो माननी चाहिए, सही बात है, करेक्ट। For all those who think girls are gold diggers, देखो पैसा गाड़ी महंगा कर नहीं बोल नहीं नहीं, नो पैसा गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा लूंगी ना, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए। Okay, and last but not the least, there are so many aspiring influencers who look up to people like you who have achieved a lot from the scratch. What would you like to tell them? I would always, tell them this is something that this is the key word. I keep on telling this. That's because I vigorously and wholeheartedly believe in this. That have self-belief. You have to believe and trust in yourself. People might tell you're not capable. जैसे मुझे बोला गया, I belong to a Muslim family. Okay, मेरे जो relatives हैं, they were not very keen on what I was doing. like क्या है ये, कब तक चलेगा, कितना चलेगा, एक तो ये है कि कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, जो हमारी फील्ड में इतनी नहीं हो पाती, कभी काम होता है कभी नहीं होता है, लोगों को लगता है। तो मैं यही बोलूँगी लोगों को कुछ भी बोलने दो, अगर आपको अपने आप पे एतबार है, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट केयर व्हाट पीपल आर सेइंग, हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ योर ड्रीम्स, कीप गोइंग एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। यू शुड नो टू फिल्टर बैकग्राउंड वॉइस कि ये नेगेटिव बात बोले, अच्छा या तो मुझे इसको लेके इसको करके दिखाना, या तो मुझे इस पर तवज्जो नहीं देना, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन रूल द वर्ल्ड, कीप वर्किंग हार्ड। एंड वन थिंग जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स में मैं देखती हूँ, जो मुझे भी कई मरतबे लोग कहते हैं कि यार कंटेंट के हवाले से व्यूज नहीं बढ़ रहे, काम नहीं मिल रहा, लाइक्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप 3-4 पोस्ट कर ली और आपको लगता है कि अब मेरा वीडियो वायरल है, मुझे बनाना बंद कर देना चाहिए, तो आप लाइफ में किधर नहीं पहुँचोगी। यू हैव टू, मैंने ऐसे लोग देखे जो 500 600 वीडियोज़ के बाद तब जाके उनकी एक रील वायरल होती है जब लोग उनको जानना शुरू कर देते हैं। तो आपको हार नहीं माननी कि मेरे 2-3 वीडियो नहीं गए, अब मैं मुझसे तो नहीं हो रहा, अब मैं बैठ रही हूँ हाथ पे हाथ धरे, नहीं, आपको बनाना है। एक वो ऐसा जरूर चीज होगी जो आपको, अगर आप में वो बात है, वो टैलेंट है, आप कंसिस्टेंट हो, वो आपको वो चीज जरूर देके जाएगी, वो रिस्पेक्ट, वो फेम, वो लॉयल फॉलोअर्स जिसकी आप तवक्को कर रहे हो, आपको जरूर मिलेगा। बट कंसिस्टेंसी इज द की, कंटेंट इज द किंग, एंड दिस आर द 2 C's दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल मीडिया, कंसिस्टेंसी एंड कंटेंट। अगर ये 2 आपका है, मैं गारंटी देती हूँ वक्त लगेगा बट आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। If you were to host a Bollywood theme party, what would be the entertainment lineup? Kusha Kapila, she's my favorite. Komal Pandey. I don't know, I can't think of many people, but Kusha and Komal, these are my 2 really favorite. Billy Mossy is the same. Alia, Kareena, they're also influencers at the end of the day. And जो सोशल मीडिया पे नहीं, उस पर तो मैं ज्यादा तवज्जो देना चाहूंगी, तो रणबीर कपूर, because he's on social media, so I want to see him in a person. Ranbir with Alia? Ranbir with Alia works. Yeah, works. I don't mind that. Yeah. And if you were a superhero, what would be your superpower? I wish I could heal a person by just blowing them a kiss. If you were to be casted in a Bollywood movie, which Bollywood movie? I think I can do any Kareena character really well. I'm very good with that. जब भी बैठ गीत, या पू जो iconic character है, I'm very good with Pooha, by the way. Like such kind of savage characters, because I can relate to that character थोड़ा सा. Also that good looks part. कौन है जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा? Who is he? मेरे साथ प्रॉम पे जाने के लिए आपको 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, and that is good looks and good looks. है आप में, अभी कभी DM करो. Thank you so much for having me. It was good time with you, and really I got very candid,
and I hope कि मैंने कुछ controversial ना बोला because I have absolutely no I free hope stuff. आपने कुछ controversial बोला हो. They want their views and TRP, हाँ, very smart. So thank you so much. Also with it, there's this cube. Yeah. This way you need to give your autograph. Ma'am, please autograph me. Oh my God. Autograph. Why do you want my autograph? You're in my heart like a photograph. Wow. Just मैं मारती रहती हूँ. यही reason है कि मेरे friends मुझसे irritate हो जाते हैं. But that's how Sana Sultan is. Candid, stupid and cute. Okay, bye.